بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے نصاب میں اس وقت ایک کتاب نحو قاسمی ہے، ہم اسی کے طرز کو اور اسی کی مثالوں کو لے کر چلیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی کتاب ختم ہونے کے بعد میں آپ کو ایک آزاد مشق کرواؤں گا، کچھ نحو کے بارے میں، ترکیب کے بارے میں، صرف کے بارے میں، جس کو ہم کتاب سے ہٹ کر بھی انشاءاللہ کچھ چیزوں کو دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال چونکہ ہم نے کتاب ہی پڑھنی ہے، تو کتاب کی مثالیں، کتاب کی چیزیں، ہم کتاب کے قواعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج ہم نے جملہ فعلیہ پڑھنا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے پڑھنے سے پہلے آپ چند چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ہم نے پڑھا تھا ایک اسم فعل حرف، تو ہم نے ایک پڑھا فعل، لفظ فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کام۔ فعل عربی میں کہتے ہیں کام کو۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، یہاں کیا کام ہوا؟ مارنے کا۔ نصرہ، اس نے مدد کی، یہاں کون سا کام ہوا؟ مدد کرنے کا۔ اسی طرح باقی فعل ہیں۔ سمعہ، اس نے سنا، یہاں کون سا کام ہوا؟ سننے کا۔ تو پہلی چیز ہے فعل۔ فعل کہتے ہیں کام کو۔ فعل، کام۔ جب بھی یہ فعل آئے گا، کام آئے گا، تو یقینی بات ہے کہ کام کو کرنے والا بھی کوئی ہوگا، کیونکہ جب تک کام کرنے والا نہ ہو تب تک کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل۔ فاعل، کام کرنے والا، کام کرنے والا، ڈوئر، کام کرنے والا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی فعل آئے گا، جیسے آپ نے کہا ضربہ، تو اس کے اندر ضرور کوئی مارنے والا ہوگا، تبھی تو مار واقع ہوئی ہے۔ اگر مارنے والا نہیں ہے تو خود بہت سے مار ہو جائے گی۔ نصرہ، اس نے مدد کی، تو مدد کرنے والا ضرور کوئی ہوگا۔ اگر مدد کرنے والا نہ ہو تو مدد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ سمعہ، اس نے سنا، ضرور کوئی سننے والا ہے، تب جا کر یہ سننا وجود میں آیا ہے۔ اگر سننے والا نہ ہو تو سننا وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہو گیا فعل کے ساتھ فاعل، کام کرنے والے۔ اب یہ فاعل جو ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فاعل کی شروعات میں دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اسم ظاہر، اسم ظاہر، اور دوسرا ہوتا ہے ضمیر۔ ایک کو ہم کہیں گے اسم ظاہر اور دوسرے کو ہم کہیں گے ضمیر۔ اسم ظاہر کہتے ہیں کسی نام کو، فی الحال جیسے ضربہ راشد، ضربہ راشد، راشد نے مارا۔ ضربہ راشد، راشد نے مارا۔ یہاں مارنے کا کام کس نے کیا ہے؟ راشد نے کیا ہے۔ یہاں فاعل کون ہے؟ راشد ہے۔ فعل کیا ہے؟ مارنے کا ہے، ضرب ہے۔ ضربن، ضربہ یہاں فعل ہے، یعنی ضرب کام ہے، اور راشدن وہ کام کرنے والا ہے۔ تو راشد یہاں پر فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے۔ کس کام کو؟ یہاں مارنے کے کام کو کرنے والا راشد ہے۔ اب یہ فاعل کی دو قسمیں بتائیں۔ ایک تو اس میں ظاہر ہوگا، جیسے یہاں پر یہ راشد نام آ گیا ہے جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر۔ اسم ظاہر، یہ آپ نوٹ کر لیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام کرنے والا۔ ضربہ، اچھا یہ فاعل پھر میں نے بتایا کہ یہ دو ہوں گے، ایک تو اس میں ظاہر ہوگا، دوسرا ضمیر ہوگا۔ اس میں ظاہر، اس میں ظاہر جو ہے وہ لفظوں میں کوئی نام ہوگا یا کوئی بھی ہوگا جو ہمیں یہاں پہ سامنے نظر آئے گا۔ ضربہ راشد، راشد نے مارا۔ ضربہ حامد، حامد نے مارا۔ ضربہ ولد، لڑکے نے مارا، یا ضرب الرجل، آدمی نے مارا،
या ज़राबा जो है ज़राबत बिन्तुन आएगा तो आप इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसमें ज़ाहिर नहीं होगा, फिर क्या होगा, ज़मीर होगी। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, राशिदुन ज़राबा, यहाँ राशिदुन अब मुब्तदा बन जाएगा और ज़राबा यहाँ खबर बनेगी, आप पढ़ चुके हो। यहाँ राशिदुन ज़राबा, यहाँ ज़राबा फ़ेल है, ये चूँकि मुब्तदा है, इसको आप इसका फ़ाइल नहीं बना सकते। बाद में लिखोगे तो फ़ाइल बनेगा, जब इसको पहले लाओगे तो फिर फ़ाइल, क्योंकि फ़ाइल फ़ेल से पहले आता नहीं है। जो ही ये फ़ेल से पहले आएगा तो ये मुब्तदा बन जाएगा। अब फ़ाइल ज़राबा के अंदर हमने देखना है, ज़राबा का क्या मतलब, उसने मारा, तो इधर ज़मीर निकलेगी। क्या निकलेगी, ज़मीर। वो कौन सी होगी, हुआ। हुआ क्यों, क्योंकि राशिद वाहिद है और मुज़क्कर है, और हुआ भी वाहिद और मुज़क्कर है, जिसका रब्त इसके साथ होगा। तो ये ज़राबा फ़ेल है, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला खबरिया होकर मुब्तदा की खबर बनेगा। तो यहाँ पर हमें ज़राबा के अंदर फ़ाइल आया, लेकिन इसमें ज़ाहिर नहीं है, यहाँ पर ज़मीर है। यहाँ पर क्या है, ज़मीर है। तो फ़ाइल कितनी किस्म का आ सकता है, इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आया ज़राबा राशिदुन, ये वाली मिसाल में ज़राबा राशिदुन, राशिद ने मारा। यहाँ फ़ाइल जो है इसमें ज़ाहिर है और यहाँ फ़ाइल जो है वो ज़मीर है। इसमें ज़ाहिर वाली सूरत यह होगी, ज़मीर वाली सूरत यह होगी। अब ज़मीर में फिर दो किस्में निकलती हैं, ज़मीर बारिज़ और मुस्ततिर। मुस्ततिर, बारिज़ और मुस्ततिर का मतलब क्या है उसको समझिएगा। हमारे पास दो फ़ेल है, ज़राबा और दूसरा फ़ेल है ज़राबा या ज़राबू, और एक और फ़ेल है ज़राबत। ज़राबत। अब देखिए, ज़राबा, यहाँ फ़ाइल कौन है, यहाँ ये अलिफ फ़ाइल है। ज़राबू, यहाँ फ़ाइल कौन है, ये वाव फ़ाइल है। ज़राबा में फ़ाइल कौन है, नज़र नहीं आ रहा है, ज़्वाद रा बा, इनमें से कोई भी फ़ाइल नहीं है। फ़ाइल कहाँ है, फ़ाइल इस फ़ेल के अंदर ज़मीर है, लेकिन वो ज़मीर छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही है। वो कौन सी ज़मीर है, वो हुआ है। लेकिन क्या हुआ यहाँ कहीं लगी हुई है इसके साथ, नहीं। नज़र आ रही है, नहीं आ रही। तो ये छुपी हुई ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है। ज़राबत के अंदर फ़ाइल कौन है, ये ता फ़ाइल नहीं है, ये ता तानीस क्या है, यानी ये ता ये ज़ाहिर करता है कि ये मोनस है। यहाँ फ़ाइल कौन है, यहाँ हिया ज़मीर है, और वो ज़मीर छुपी हुई है इसके अंदर, हम निकालते हैं उसको। यहाँ ज़राबा में कोई ज़मीर छुपी नहीं है, ज़मीर ये मौजूद है अलिफ की सूरत में। इसको हम समझाने के लिए क्या देते हैं कि ये हुमा ज़मीर है, हालांकि हुमा नहीं, ये अलिफ ही ज़मीर है। ज़राबू में हम क्या देते हैं, हुम ज़मीर, वो समझाने के लिए, हालांकि यहाँ वाव ज़मीर है, और यही वाव रिप्रेजेंट करती है, बताती है ये हुम को, और यही अलिफ बताता है हुमा को। तो यहाँ पर ज़मीरों की दो किस्में आ गई। एक ज़मीर वो है जो फ़ेल के अंदर छुपी हुई है, दूसरी ज़मीर वो है जो सामने नज़र आ रही है। अगर सामने नज़र आ रही है तो इसको कहेंगे ज़मीर बारिज़, और अगर छुपी हुई है तो इसको कहेंगे ज़मीर मुस्ततिर, जैसे ज़राबा में और ज़राबत में। इन्हीं दो में ज़मीर छुपी होती है, ज़राबा और ज़राबत में। बाकी सब में ज़मीरें वहाँ पर लिखी हुई होती हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ होता है, वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीगा आता जाएगा। ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, उसमें फिर अलिफ आ जाता है। ज़रबना, उसमें नून आ जाता है। ज़रबता में ता आ जाता है। ज़रबतुमा, उधर तुमा आता है। ज़रबतुम, उधर तुम ज़मीर है। ज़रबती, उधर ती ज़मीर है। ज़रबतुमा, उसमें भी तुमा है, और ज़रबतुन्ना, उसमें तुन्ना है। ज़रबतु में तू है, और ज़रबना में ना है। तो सब में ज़मीरें सामने नजर आ रही। तो अब फ़ाइल की तीन सूरतें होगी अगर देखा जाए। पहली, इसमें ज़ाहिर वाली सूरत, ये वाली सूरत, ज़राबा राशिदुन, ज़राबा राशिदुन, ये फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है।
दूसरा फाइल ज़मीर ही है, लेकिन इसमें दो सूरतें हैं, या तो ज़मीर छुपी हुई होगी या ज़मीर सामने होगी। सामने है तो बारिज़ है, छुपी हुई है तो मुस्ततिर है। तो अब फाइल की तीन सूरतें होंगी। फाइल या तो इसमें ज़ाहिर होगा, या ज़मीर मुस्ततिर होगा, या ज़मीर बारिज़ होगा। ज़राबा उस एक मर्द ने मारा, ज़राबा उन दो मर्दों ने मारा। वो दो मर्द जो है उनको ज़ाहिर कौन कर रहा है? ये अलिफ। ज़राबू उन सब मर्दों ने मारा, उन सब मर्दों को कौन ज़ाहिर कर रहा है? ये वाव। तो ये ज़मीर है। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि फाइल जो है काम करने वाला, वो कभी तो इसमें ज़ाहिर होता है और कभी ज़मीर होता है। और ज़मीर में फिर दो सूरतें निकलती हैं, या तो वो ज़मीर सामने होगी जिसका तलफ़्फ़ुज़ हो रहा होगा तो बारिज़ है, या वो ज़मीर छुपी हुई होगी जिसको ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं। आपके पास एक लफ्ज़ आया ज़राबा राशिदुन, ज़राबा राशिदुन, राशिद ने मारा। अभी मैं इसकी तरकीब पर और एराब पर नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल आप खाली समझे। ज़राबा फ़ेल है, ज़राबा का तर्जमा मारा, राशिदुन राशिद ने, ज़राबा फ़ेल है, राशिदुन फ़ाइल है यानी काम करने वाला है। एक और चीज़ है तीसरी, राशिद ने मारा तो किसी को मारा होगा ना, जिसको ये मारेगा। मिसाल के तौर पे ज़राबा राशिदुन हामिदन, तर्जमा होगा राशिद ने हामिद को मारा। राशिद ने हामिद को मारा। जो काम है वो फ़ैल हो गया, जो काम करने वाला है वो फ़ाइल हो गया। जिस पर ये काम वाक़े हुआ है, यानी ये मार जिसको पड़ी है, जिस पर पड़ी है, उसको ये वो कौन है? हामिद। उसको कहते हैं मफ़ऊल, मफ़ऊल बी। जिस पर काम वाक़े हुआ, जिस पर काम वाक़े हुआ हो, मफ़ऊलुन बिही, जिस पर काम वाक़े हुआ हो, यानी जिस पर वो काम हमने किया हो। तो जब भी जुमला फ़ैलिया आएगा, आपने कुछ चीज़ों को समझना है। नंबर एक, फ़ैल क्या है? फ़ैल हो गया काम। नंबर दो, इस फ़ैल को करने वाला कोई होगा, उसको फ़ाइल कहते हैं। नंबर तीन, ये फ़ैल किसी पर हुआ होगा, उसको मफ़ऊलुन बिही या खाली मफ़ऊल भी कह देते हैं। जैसे एक और जुमला लेते हैं, अकला साजिदुन, अकला साजिदुन, अकला खाया, साजिदुन साजिद ने, साजिद ने खाया। जब खाने का काम आया तो करने वाला कोई होगा जिसने वो काम किया होगा, तो कौन है वो? साजिद है जिसने खाने का काम किया है। अकला तो फ़ैल है, ये करने वाला, इसको फ़ाइल कहते हैं, ये फ़ाइल हो गया। अब किसी चीज़ को खाया होगा, हम कहते हैं अत्ताम, खाने को खाया, अत्ताम। अकला साजिदुन अत्ताम, साजिद ने खाना खाया। तो इसका काम खाने का किस पर वाक़े हुआ? खाने पर। चाहे वो खाने में चावल थे, रोटी थी या और कोई चीज़ थी, तो इसका काम वाक़े किस पर हुआ? ताम पर। तो ये अत्ताम मफ़ऊल बिही बन गया, ये अत्ताम मफ़ऊल बिही बन गया। अभी मैं ज़बर ज़ेर कुछ नहीं आपको समझा रहा, खाली आप समझते जाएं फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल, फिर इनके कवायद बताऊंगा। अकला जो काम होता है उसको फ़ैल कहते हैं, जो उस काम को करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर वो काम हुआ होता है उसको मफ़ऊल बिही कहते हैं। ये तीन चीज़ें आपने समझनी है, फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल बिही। ये जब आपको समझ आ गई तो अब आप आगे चलिए थोड़ा सा। आगे क्या चलना है आपने कि
ज़रबा राशिदुन हामिदन। ज़रबा राशिदुन हामिदन, राशिद ने हामिद को मारा। ये फेल है। जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? फाइल। उसको कहते हैं फाइल। और फाइल के बारे में आप कायदा याद रखें, ये हमेशा मरफू होता है। क्या होता है? मरफू। और मरफू की कितनी सूरतें मैंने आपको बताई थी? एक पेश भी आ सकता है, दो पेश भी आ सकते हैं, आलिफ भी आ सकता है, वाव भी आ सकता है। आगे चल के सबकी तफसील आएगी। यहाँ चूंकि मरफू की इन चार हालतों में से एक दो पेश वाली भी है, तो इस पर दो पेश आया हुआ है, राशिदुन। तो ये राशिदुन फाइल बनेगा। और फाइल पर अगर आपने ज़बर ज़ेर पेश देनी हो तो पेश दोगे। और हामिदन ये मफ़ऊल है, ये मफ़ऊल है। और मफ़ऊल मंसूब होता है, मंसूब होता है। और मंसूब की कितनी सूरतें हैं? एक ज़बर, दो ज़बर, कभी या के साथ भी होगा। ये सूरतें हैं इसकी। और यहाँ पर देखो कौन सी सूरत में है? दो ज़बर के साथ। गोया कि हमारे पास एक लफ्ज़ है, राशिद ने हामिद को मारा। यहाँ पर मारने वाला कौन है? राशिद। मारा किसको? हामिद को। तो अगर हमने इसकी अरबी बनानी है तो हमने तरतीब क्या रखनी है? सबसे पहले फ़ैल को लाना है। तो फ़ैल क्या है? मारा। मारने की अरबी क्या है? ज़रबा। लिखा ज़रबा। उसके बाद जो आम तरतीब है, फ़ाइल आता है। फ़ाइल कौन है? राशिद। तो राशिद को लिखेंगे। कैसे पता चलेगा ये फ़ाइल है? इसके ऊपर दो पेश देने। अगर अलिफ लाम होगा तो एक पेश दी जाएगी, अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो पेशें दी जाएंगी। किसको मारा? हामिद को मारा। तो हामिद लिखने के बाद हमने इस पर दो ज़बर देने। अगर अलिफ लाम होगा तो एक ज़बर आ जाएगा, और अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़बर आ जाएंगे। उर्दू में निशानी देखिए, जो काम करने वाला फ़ाइल होता है उसके साथ ने आता है, और जिस पर काम किया जाता है मफूल उसके साथ को आता है। राशिद ने हामिद को मारा, तो मारने वाला कौन है? जिसके साथ ने है वो राशिद है। किसको मारा? जिसके साथ को है, तो को हामिद के साथ। राशिद ने हामिद को मारा। ज़रबा राशिदुन हामिदन। अब आपके पास एक कायदा आया कि फ़ाइल हमेशा मरफू होता है और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। मरफू में उसकी जो भी शक्ल आ जाएगी, पेश वाली, दो पेश वाली, अलिफ वाली, या वाली, वाव वाली। और मंसूब में भी जो शक्ल आ जाए, एक ज़बर वाली, दो ज़बर वाली, या वाली सूरत। तो हमेशा आगे चल के चूँकि मिसालें और ज़्यादा आएंगी, आपको अच्छी तरह समझ आता जाएगा। तस्निया का जब हम बनाएंगे, जब हम ज़क्र सालिम का बनाएंगे, जब हम सालिम का बनाएंगे, गैर मुनसरिफ को बनाएंगे, तो सारी किस्में आपके सामने आएंगी। फ़िलहाल हम किस्मों को छोड़ के आसान सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रबा राशिदुन हामिदन, पहली बात ये याद रखनी है कि जुमला फ़ेलिया में तीन चीज़ों का याद रखना है। एक तो काम होता है उसको फ़ैल कहते हैं, दूसरा काम करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं, तीसरा जिस पर वो काम होता है उसको मफ़ऊल बिही कहते हैं। तरतीब क्या होगी? पहले फ़ैल होगा, फिर फ़ाइल होगा, फिर मफ़ऊल बिही होगा। ये आम तरतीब है, कभी कभी उलट भी जाती है तरतीब। अलबत्ता फ़ाइल फ़ैल से पहले नहीं आएगा। जो ही ये फ़ाइल इधर चला जाएगा तो फिर वो जुमला फ़ेलिया नहीं, वो मुब्तदा बन जाएगा, तो इसलिए वो जुमला फ़ेलिया रहेगा ही नहीं। हो गया एक बात। दूसरी बात ये है कि जुमला फ़ेलिया कहते किसको है? तो उसके लिए हमने बताया था कि जुमला इस्मिया उसको कहते हैं जो शुरू इसम से होता है, और जुमला फ़ेलिया उसको कहते हैं जो शुरू फ़ेल से होता है। फ़ेल चाहे यहाँ पर आप माजी लिखो, मुज़ारा लिखो, अमर लिखो, नहीं लिखो, कोई भी फ़ेल हो, जब भी फ़ेल से जुमला शुरू होगा वो जुमला फ़ेलिया है। जब भी जुमला फ़ेलिया शुरू हो गया, आपको पता चल गया कि ये जुमला फ़ेलिया है, तो उसमें आपने कितनी चीज़ें ढूंढनी हैं? तीन चीज़ें, और दो चीज़ें पर भी बन सकता है, उसकी भी तफसील बताऊँगा।
پہلے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں کام کیا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ دوسرا کام کرنے والا کون ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تیسرا کام کس پر ہوا ہے، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ اب جو ہے آگے چل کر ہم دوسرے سبق میں اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ مسند علی کون بنتا ہے، مسند کون بنتا ہے، راشدن پر پیش، حامدن پر زبر، یہ سارا انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ فی الحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ کے تعلق سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اتنی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔